Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ujjwal and I am a BSc nursing student. So in this video, I am going to talk about what I felt and what I learned during my postings. So अभी मेरी first semester की postings खत्म हो गई है and in this video only I am going to tell you what I felt and what I learned. पहले जिसको पोस्टिंग का मतलब नहीं पता मैं वो बता देती हूँ कि पोस्टिंग का मतलब इन सिंपल वर्ड्स इट इज ड्यूटी इन हॉस्पिटल. यू हैव टू गो टू क्लिनिकल्स, यू हैव टू ट्रीट रियल पेशेंट, यू हैव टू लर्न फ्रॉम द रियल पेशेंट. आपको एक रियल इन्वायरमेंट में काम करना होता है. दिस इज व्हाट द पोस्टिंग इज. तो द फर्स्ट पॉइंट आई हैव मेंशन्ड फॉर दिस वीडियो टॉपिक इज बीइंग प्रोफेशनल एंड डिसिप्लिन्ड. बिकॉज आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपको प्रोफेशनल रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज हॉस्पिटल इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल स्पेस. इट इज़ नॉट अ स्पेस टू एंजॉय. ऑफकोर्स आपके क्लासमेट्स होते हैं आपके साथ, आपके बहुत आपके बेस्ट फ्रेंड्स भी बनते हैं, आपके जिगरी यार भी बनते हैं, है ना. तो उनके साथ आप बातचीत भी कर सकते हो, बट यू हैव टू लिमिट दैट. यू हैव टू सेट अ बाउंड्री दैट ओके, इफ आई एम इन अ हॉस्पिटल I do not have to talk that much, I do not have to laugh that much. Because why I am in a hospital? To build my skills, to build my practice. And ये सारी चीज़ें जो मेरे को help करेगी for being a good nurse, है ना. ये सारी चीज़ें जो मेरे को help करेगी to be rich in knowledge. तो this is not the only reason to be professional and disciplined in the hospital. Another reason for this that I feel is हॉस्पिटल में ना पेशेंट दे रियली लुक फॉरवर्ड यू. दे लुक फॉरवर्ड यू विद द होप्स. बिकॉज पेशेंट के जो रिलेटिव्स भी होते हैं, उनके साथ जो अटेंडी भी होते हैं, ऑल दिस थिंग्स जब आप सिनेरियो देखते हो ना हॉस्पिटल का, पेशेंट इज इन अ क्रिटिकल कंडीशन, अटेंडीज आर देयर विद द पेशेंट, all these things are very deep and very critical, and sometimes there are things which are very hard to absorb. Seeing a death in the hospital, it is not easy. Seeing a small kid with a critical condition, it is not easy. So लोग वहाँ पे बहुत ही इमोशनल स्टेट में होते हैं, इसलिए आपको अपना अपना ईज, अपना एक काम मेंटेन करना ज़रूरी होता है. Professional, it is not only in the terms you dress yourself or speak. Professionalism is also in the term of your internal emotional state. इमोशनल स्टेट में भी आपको अपने इमोशंस को ओवर पावर नहीं होने देना अपने ऊपर. बिकॉज देयर आर सम कंडीशन विच आई हैव सीन कि पेशेंट की डेथ हो जाती है, एंड बिकॉज वी हैव स्पेंड टाइम विद दैट पेशेंट, वी हैव केयर्ड फॉर दैट पेशेंट, हमें खुद को बहुत बुरा लगता है, एंड वी ऑल्सो फील crying sometimes a lot, but we have to maintain that calm, we have to maintain our emotional state within ourselves. So this is a reason why I think being professional and disciplined is important for a nurse during a posting. Now this leads us to our next point, that is witnessing deaths and maintaining calm. जो एक नर्स होती है ना, you see a life beginning and you also see it ending too in a hospital. Especially in the medicine ward, it is very common to see 3 or 4 deaths in a day. It is very common to see. तो उस हिसाब से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होता है पहले से. नो वन एक्चुअली प्रिपेयर्ड मी फॉर दिस. पहले किसी ने भी इस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करी है. इवन दो माई नीड प्रिपेयरिंग ईयर्स, लोग बोलते हैं डॉक्टर बनोगे इज्जत मिलेगी, ये होगा वो होगा. बट डॉक्टर्स को भी इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रखना पड़ता है. नर्सेस को भी, जो भी मेडिकल प्रोफेशन में जा रहे हो, उन सबको प्रिपेयर रखना पड़ता है. दैट यू हैव उनको ये बताना पड़ता है दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड for witnessing a death. You have to be strong enough. You have to ask yourself this question first. Can you maintain a calm? Can you maintain your calm in any difficult situation? Because the situations that occur in a hospital is very deep, and it is very, it affects you a lot also. So
from that point of view, you have to maintain your calm and you have to be emotionally prepared for witnessing a death. The third point that I have mentioned is new dimension of life. So it is a very deep and it is the very important point that should be understood by everyone, regardless who is in this healthcare sector or not. ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ व्हाट आई मीन बाय न्यू डायमेंशन ऑफ लाइफ. देखो, जब आप हॉस्पिटल सेक्टर में काम करते हो ना, जब आप देखते हो कि फैमिली, पेशेंट की फैमिली उसके साथ खड़ी है, विद द होप इन देयर आईज, व्हेन यू सी द फैमिली क्राइंग फॉर देयर लव्ड वंस हु हैव जस्ट पास्ड, एंड जब आप ये भी देखते हो कि kid who is just 6 to 7 year old and he has or she has a very critical condition, all these things are very hard to take. ये चीज़ें आप ले नहीं सकते हो इतनी आसानी से, और ये चीज़ें होती है जो आपको अंदर से थोड़ा सा बदल के रख देती है. यू बिकम मोर ग्रेटफुल. आई हैव बिकम मोर ग्रेटफुल, है ना. आई हैव बिकम मोर ग्रेटफुल फॉर everyone who is watching this video. I am very grateful that you have given your time and you're listening me right now. I am grateful for every breath I have. I am very grateful for the family I have. तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत grateful बना देती है. You understand the life is very fragile now. It changes every moment. It changes, है ना. तो अगर आपके पास जो चीज़ आज है, क्या पता वो कल हो ना हो, है ना. तो लाइफ बहुत ज़्यादा तेज भागती है, बहुत जल्दी चेंज हो जाती है. तो इन दिस सिनेरियो आपको हर चीज़ में ना नेगेटिविटी नहीं निकालनी है. बी ऑप्टिमिस्टिक. लाइफ को एक पॉजिटिव वे में देखना सीखो, है ना. हर चीज़ में कमियां, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. हॉस्पिटल जाके देखो, लोगों के पास, लोग बहुत परेशानी में होते हैं वहाँ पे. तो आपको इन सिनेरियो में समझना चाहिए कि आप कितने खुश इंसान हो. आपको समझना चाहिए कि आपके पास क्या कुछ नहीं है. एक अमीर से अमीर इंसान भी अगर हेल्दी नहीं होगा ना, तो वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा. और एक गरीब से गरीब इंसान भी इमोशनली, मेंटली फिट होगा ना, तो ही और शी कैन एंजॉय लाइफ. लाइफ एंजॉय करने के लिए पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है. ज़रूरी नहीं है लाइफ एंजॉय करने के लिए पैसा इम्पॉर्टेंट. लाइफ एंजॉय करने के लिए इनर पीस इम्पॉर्टेंट होता है. लाइफ एंजॉय करने के लिए एक हेल्दी बॉडी इम्पॉर्टेंट होती है. तो ये सारी चीज़ें होती है. एंड यू नो वॉट, आई हैव ऑल्सो लर्न दैट द काइंडनेस इज द बिगेस्ट एक्ट. मतलब जब भी मैं जाती हूँ ना पोस्टिंग के लिए, तो आई ऑलवेज सी पेशेंट विद अ डल फेस. दे आर नॉट हैप्पी. मोस्ट ऑफ द पेशेंट, वाई डू दे डाई? बिकॉज दे गिव अप. वो अंदर से ही मर चुके होते हैं, वो अंदर से गिव अप कर देते हैं, इसलिए वो डाई कर जाता है, इसलिए उनकी डेथ होती है ना. तो इन दैट सिनेरियो अगर आप पेशेंट के साथ काइंड तरीके से बात करोगे ना, पेशेंट को फील करवाओगे कि आप बहुत अच्छे हो, उनके साथ, है ना, अच्छे से बात करो पेशेंट के साथ. उनके साथ उनको मेक देम फील हैप्पी, है ना. गिव देम अ रीजन टू बी अलाइव, है ना. फिर आप देखोगे, फिर आप जाओगे ना उस पेशेंट के बाद, उस पेशेंट के पास, फिर अब जब बाद में जाओगे, वो पेशेंट खुश होगा आपको देख के. अरे वाह, ये तो, इसने तो मेरे से बहुत अच्छे से बात करी थी, ये अच्छी नर्स है, ये अच्छा डॉक्टर है. ऐसे होता है. तो पेशेंट को ना आप एक रीजन दो, उनको फील करवाओ कि लाइफ इज नॉट दैट बैड, इट इज वेरी ब्यूटिफुल, है ना. तो दिस इज हाउ माई डायमेंशन ऑफ लाइफ हैज चेंज्ड. माई thought about life had changed. I have I am internally very grateful now for everything I have. I am internally very satisfied about me, है ना. तो ये सही चीज़ें होती है. तो व्हाट आई हैव लर्नड इज लाइफ इज वेरी फ्रेजाइल, इट चेंजेस एवरी मोमेंट. जो काइंडनेस है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी काइंड टू एवरी वन. इट आप जैसे काइंड रहोगे ना सामने वाले बंदे से, इट क्रिएट्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द अदर पर्सन. आपको रियलाइज नहीं होगा, बट आगे वाला बंदा, उसका दिन खराब चल रहा होगा ना, तो वो फिर आपको याद करेगा और खुश हो जाएगा. दैट्स why kindness is the biggest act. And be grateful always. Always be grateful for everything you have. Okay. So this is what I have learned during my posting. This is what I have felt during my postings. So I hope, मतलब जो भी
चीज़ में आ रहा है, बीएससी नर्सिंग में आ रहा है, मेडिकल फील्ड में आ रहा है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए. प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स which I have shared with you. So yeah, I hope this video is helpful for you. Thank you so much for giving me your time, and bye bye.